So hello dear students, today we will discuss about the climbing film evaporator, and the other name of this evaporator is also rising film evaporator. So this topic comes under the chapter evaporation, and actually what are the evaporators? Evaporator is actually a machinery, we can say, or we can say simply the equipment which is using to for the evaporation purposes in the pharmaceutical industries. So first of all, we have to remember two things, that climbing film evaporator having another name that is also known as rising film evaporator. So here, climbing film evaporator is actually of two types. First is the evaporators are two types. First is the climbing film evaporator. Second one is the falling film evaporators. But in our syllabus, we have to discuss only one, that is the climbing film evaporator. This is the small diagram that I have given in this PPT. And first of all, we will discuss about the principle. So here you can see in this diagram that this is actually a small diagram. We can also move towards the large diagram. First, we will discuss about the construction so that you will be able to understand that what are the basically part of this climbing film evaporator, and then it will be easy to understand about the principle and the working. So through this diagram, you can see the component of these evaporator. So first of all, you have to see that at the bottom side, the feed inlet is available for this evaporator. So through the feed inlet, we are able to introduce any kind of feed to this evaporator. Now you can see that at the side, one inlet is provided for the steam. Steam we will use in this evaporator to heat the pipes, or we can say the small tubes that is using for the evaporation purposes. So through this inlet portion, we will introduce the steam here. We can also see there are some outlets are provided, that is one for the vent and another for the condensate. So first of all, you have to be clear in your mind that what is the vent, what is the purpose of vent, and what are the condensate. So vent basically क्या होता है हमारा, कि जब भी हमने यहाँ से स्टीम जो भी इंट्रोड्यूस कराया हीट करने के लिए इन ट्यूब्स को, तो ये स्टीम क्या करेगी, हीटिंग का काम करेगी. बट आफ्टर हीटिंग ये स्टीम जो है कन्वर्ट हो जाती है आपके लिक्विड में, और वी कैन से सिंपली द इन द वाटर. बट आफ्टर द वाटर ऑल्सो, इफ सम गैसेस आर रिमेनिंग इन दीज पाइप्स और स्मॉल ट्यूब्स, तो वो जो गैसेस होती हैं इस वेंट के थ्रू क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं. Now, the condensate, what are the condensate? That when steam will be condensed and converted into the water, that is known as condensate. तो कंडेंस होने के बाद या कूल होने के बाद जो भी स्टीम का लास्ट प्रोडक्ट बचता है, जो कि हम जानते हैं दैट विल बी डेफिनेटली द वाटर. सो वो कंडेंसेट हम क्या करते हैं, इस आउटलेट के थ्रू बाहर कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट देयर आर स्मॉल ट्यूब्स आर प्रेजेंट. आप देख सकते हैं ये जो जहाँ पे एरो लगे हुए हैं, ये आपके क्या है, स्मॉल ट्यूब्स हैं. इन ट्यूब्स के अंडर ही ये हमारा फीड मटेरियल क्या करता है, फ्लो करता है टुवर्ड्स द अपर साइड. और जब ये ऊपर करके फ्लो करता हुआ जाता है, देन वी कैन सी हियर दैट एट द अपर साइड, or we can say the head portion of this evaporator containing one deflector. Deflector, what is the purpose of deflector here? Actually, deflector means it is having one work of the deflection. मीन्स ये किसी ना किसी कह सकते हैं पार्ट को या फीड मटेरियल को क्या करता है, अपने डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है. सो वी कैन सी हियर वेपर हेड. वेपर हेड का पर्पस क्या है, कि ये जो ऊपर पोर्शन है, यहाँ का अपर साइड है, यहाँ पर जो भी लार्ज स्पेस हमारा प्रेजेंट है, इसमें हमारे सारे फीड मटेरियल के वेपर्स कलेक्ट होंगे. ठीक है. इन वेपर्स के बाद इन वेपर्स का एग्जिट दिखाने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं दूसरी तरफ साइड में क्या दिया हुआ है, एक साइक्लोन सेपरेटर दिया हुआ है. तो अब बेसिकली साइक्लोन सेपरेटर का क्या पर्पस है, वी कैन अंडरस्टैंड बाय द वर्ड दैट सेपरेटर. सेपरेटर मीन्स कि ये किसी चीज को सेपरेट कर रहा होगा. अब यहाँ पे एक्चुअली हमारा क्या मिक्सचर अवेलेबल होगा, यहाँ हमारा या तो मीन्स वेपर्स का एज वेल एज लिक्विड, इन दो चीजों का मिक्सचर हमारा प्रेजेंट हो सकता है. तो यहाँ पर जब आप देखें तो यहाँ अगर जो वेपर और वाटर का मिक्सचर है, वेपर क्या होती है, हमेशा फ्लो करती है. ठीक है, ये अपर साइड फ्लो करेगी, तो यहाँ पे वेपर अपर साइड से एक हमारा आउटलेट प्रोवाइड किया गया है वेपर के लिए, उसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है. अब दूसरी चीज बोली जाए कि वेपर का मिक्सचर हो सकता है यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर या वी कैन से द लिक्विड के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड वाला जो भी पोर्शन होगा या पार्ट होगा, वो क्या करता है, नीचे फ्लो करता हुआ आपके इस रिसर्कुलेशन वाले पाइप में से बाहर आ सकता है. अब इस साइक्लोन सेपरेटर
के बाद अगर हम देखें तो ये मीन्स ये पूरी आपकी एक वी कैन से द कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड देयर ना। एक यहाँ पे लास्ट पार्ट दिया गया है, एक आउटलेट और प्रोवाइड किया गया है कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट के लिए, कि जो भी हमारा फीड मटेरियल फाइनली प्रोडक्ट में कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसको हम इस आउटलेट के थ्रू बाहर कलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो इवेपोरेटर है उसकी ये पार्ट है। अगर आप इस पार्ट्स को और इसके डायग्राम को ठीक से याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसका प्रिंसिपल एज वेल एज वर्किंग को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं, पहले देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। सो इन दिस नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल डायग्राम। सो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, ट्यूब्स हीटेड एक्सटर्नली बाय द स्टीम। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो स्टीम है वो हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस कराई साइड में, और ये इन ट्यूब्स के अंदर जाकर के इन ट्यूब्स की कह सकते हैं कि पहले ये एक्सटर्नल सरफेस को गर्म करेगा, देन थ्रू द कंडक्शन एक्सटर्नल सरफेस हीट विल बी ट्रांसफर टू द लोअर साइड और लोअर सरफेस इंटरनल सरफेस ऑफ दीज ट्यूब्स। तो यहाँ से स्टीम इसको हीट करते हुए क्या करेगी, अंदर की तरफ पहुंचेगी। प्रीहीटेड फ्लूइड एंटर थ्रू द बॉटम एंड फ्लोज अप थ्रू द हीटेड ट्यूब। अब इसमें क्या करना है हमको, प्रीहीटेड फ्लूइड मींस फ्लूइड को, जो भी हमारा फीड मटेरियल है उसको पहले से ही हमको थोड़ा सा गर्म कर देना है। जिससे क्या होगा, उसको हीट करने के बाद जब वो इस इवेपोरेटर से पास होता है तो ये बहुत ही जल्दी वहां पे गर्म हो जाता है। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस पूरे इवेपोरेटर के अंदर कंसंट्रेट होने के लिए, और एज अ प्रोडक्ट वी कैन अचीव दैम। सो प्री हीटेड फ्लूइड एंटर थ्रू द बॉटम, नीचे से जो हमारा फीड मटेरियल का इनलेट पॉइंट है हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस कराया फीड मटेरियल को। ये फीड मटेरियल हमारा इन पाइप्स के और इन ट्यूब्स के थ्रू होता हुआ क्या करेगा, ये बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ जो फीड मटेरियल है इसको हमेशा क्या करते हैं हम, कुछ कह सकते हैं प्रेशराइज फॉर्म में, या फिर उसको प्रेशर देके ही हमेशा इसको आगे की तरफ इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आता है लिक्विड गेट्स हीटेड रैपिडली ड्यू टू एनहेंस्ड कोफिशिएंट ऑफ ओवरऑल प्री हीटेड फीड। तो इसको आप सिंपल टर्म्स में समझ लें कि जो भी हमने पहले से हीट करके फीड मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराया होता है वो उसका ओवरऑल जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, उसका हीट कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, एनहेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारा लिक्विड है वो बहुत ही जल्दी इन पाइप्स और इन ट्यूब्स के अंदर जाने के बाद गर्म हो सकता है। लिक्विड नियर द वॉल्स बिकम वेपर्स एंड फॉर्म स्मॉल बबल। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे ही हमारा प्रीहीटेड फीड हमने इसमें इंट्रोड्यूस कराया और ये ट्यूब्स में पहुंचा, यहाँ से स्टीम जो है इसको कंटिन्यूसली क्या कर रही है, गर्म कर रही है। अब इस हीटेड सरफेस ऑफ द ट्यूब से क्या करते हैं, इसकी हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद लिक्विड जो इस ट्यूब्स के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, वो इनके कांटेक्ट में आने के बाद तुरंत ही बात क्या करने लगता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद एक तरह से क्या कह सकते हैं कि वो बॉईल होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बॉईल होके क्या होता है, हम सबको पता है जैसे ही लिक्विड बॉईल होना शुरू करता है तो उसमें छोटे छोटे बबल्स बनने लगते हैं। तो वही वही ये चीज लिखा हुआ है कि लिक्विड नियर द वॉल, तो जो भी लिक्विड इन ट्यूब के वॉल के सबसे बगल से होगा या फिर उनके नियरेस्ट पॉइंट पर होगा वो तुरंत क्या होते हैं, वेपर बनने लगते हैं और छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में आने लगते हैं। दीज बबल्स टेंड्स टू फ्यूज टू फॉर्म द लार्ज बबल। अब ये जो छोटे छोटे बबल्स हैं ये क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, बड़े बबल्स बना लेते हैं, विच ट्रेवल अप इन द ट्यूब्स अलोंग विद द एंट्रैप्ड स्लग पार्ट ऑफ द लिक्विड। तो ये जो छोटे बबल्स आपस में मिलकर एक लार्ज बबल क्रिएट करता है, ये क्या करता है, ऊपर की तरफ ट्रैवल करता जाता है। और मोस्टली जनरली इनमें क्या होता है, जो भी हमारा बड़ा वाला बबल होता है उसके अंदर कुछ न कुछ पार्ट लिक्विड का एंट्रैप हो जाता है, एंड दैट एंट्रैप्ड लिक्विड पार्ट इज नोन एज स्लग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लग बोलते हैं। तो ये जो स्लग वाला पार्ट या बबल्स जब ऊपर की तरफ हमारे जाते हैं तो ये क्या करता है कि ऊपर डिफ्लेक्टर लगा हुआ है। ये डिफ्लेक्टर का अब यहाँ पे काम आप समझिएगा, यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है एक्चुअली, कि जो भी हमारे लार्ज बबल इनके मीन्स ये ऊपर की तरफ जाते हैं और ये जैसे ही इस डिफ्लेक्टर से स्ट्राइक करते हैं ये क्या करता है, उन बबल्स को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद जो भी उनके अंदर का एंट्रैप लिक्विड है उसको क्या करता है, डायरेक्टली इसमें इसके नीचे ट्यूब्स में फिर से वापस भी इसको पहुंचा सकता है, या फिर क्या कर सकता है कि यहाँ से डिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो हमारे लिक्विड है उसके अंदर स्लग के फॉर्म में जो है वो हमारा इस रिसर्कुलेशन के बाद ये जो पाइप कनेक्टेड है हमारा, यहाँ पे ट्यूब कनेक्टेड है जो कि हमारा कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए दिया गया है। यहाँ इस ये कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हम इसको यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। देन आपका आता है हमारा लिक्विड फिल्म वो ब्लोन अप फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्यूब एंड स्ट्राइक एंट्रेनमेंट सेपरेटर और डिफ्लेक्टर। तो इस डिफ्लेक्टर को हम क्या करते हैं, कहते हैं एंट्रेनमेंट सेपरेटर भी कहते हैं।
This throws the liquid concentrate down into the lower part from where it can be withdrawn. तो यहाँ यही बात लिखी हुई है कि जैसे ही डिफ्लेक्टर से ये लिक्विड बबल्स हमारे टकराते हैं, तो ये टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, इनमें जो भी लिक्विड एंट्रैप होता है, जिसको हम स्लग बोलते हैं, उसको हम यहाँ से एक कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट के फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं. So this is basically the principle of this climbing film evaporator. Now construction we have already discussed in the diagram, but you can for the writing purpose you can write in this manner, जिससे कि आपको क्या होगा, याद करने में भी आसानी रहेगी, और जस्ट आप सिंपली एक लाइन में इनका फंक्शन लिख सकते हैं. तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले हीटिंग यूनिट्स होते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 steam jacketed tubes. स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स हेल्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स. तो जितनी भी हमारे स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स हैं वो आपके 2 प्लेट्स के अंदर जो है उसको हम एनक्लोज करके रखते हैं लाइक दिस, कि ये हमारी एक प्लेट हो गई, इस तरफ से हमारी एक प्लेट हो गई, और इसके अंदर हमारी पूरी ये स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स लगी हुई हैं. एंट्रेनमेंट सेपरेटर. एंट्रेनमेंट सेपरेटर आपका, हमने देख लिया डिफ्लेक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे टॉप पे प्रेजेंट है. एक होता है हमारा वेपर हेड जो कि हमारा डिफ्लेक्टर से ऊपर प्रेजेंट है. इवेपोरेटर कैरीज, और इसमें क्या होता है, हमारा स्टीम इनलेट है, और किस वेंट आउटलेट और कंडेंसेट के लिए आउटलेट यहाँ पे प्रोवाइडेड किया गया है. तो कंस्ट्रक्शन में आप इतने पॉइंट्स लिख देंगे, दैट इज सफिशिएंट. नाउ अबाउट द वर्किंग. वर्किंग में हमारा क्या आता है, प्री हीटेड लिक्विड फीड इंट्रोड्यूस इनटू द वेपर. प्री हीटेड जो भी लिक्विड फीड होता है, हम यहाँ से ही इसको समझ लेते हैं इस डायग्राम से, कि जो भी हमारा प्री हीटेड, यहाँ से हमने सबसे पहले इस फीड मटेरियल को हीट करने के बाद, प्री हीटेड मीन्स पहले से ही हमने उसको पहले कुछ हीट दे रखी है, देन प्री हीटेड लिक्विड फीड हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं इस क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर में. इसमें जाने के बाद हम यहाँ से स्टीम, हमने जो इसको ट्रांसफर कर रखी है, स्टीम क्या करती है, इन ट्यूब्स को हीट करने का काम करती है. इसमें ये फीड मटेरियल जैसे ही अंदर जाता है, ये फीड मटेरियल जैसे इन ट्यूब्स के कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या करता है, इसमें जो भी हीटेड हमारी ट्यूब्स हैं उसे हीट को एब्जॉर्ब करता है, खुद हीट होना स्टार्ट कर देता है. ये जैसे ही हीट होना स्टार्ट करता है, इसमें क्या होता है, वेपर्स स्टार्ट हो जाती हैं बननी. वेपर्स बनने के बाद छोटे छोटे बबल्स स्टार्ट हो जाते हैं बनने. ये बबल्स आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके एक लार्ज बबल क्रिएट कर सकते हैं. लार्ज बबल क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, इस डिफ्लेक्टर से स्ट्राइक करेगा. इस डिफ्लेक्टर से स्ट्राइक होने के बाद इसमें जो भी लिक्विड का पार्ट होगा, जिसको हम स्लग कह रहे थे, ये क्या करता है, ये यहाँ से इस वाले इस वाले ट्यूब के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर ले सकते हैं. जो भी वेपर्स होंगी वो इस वेपर हेड में प्रेजेंट होंगी, और वेपर हेड में प्रेजेंट होने के बाद ये वेपर जाएंगी साइक्लोन सेपरेटर में. अब इन साइक्लोन सेपरेटर में कुछ वेपर्स हो सकते हैं जो कि हमारे कंडेंस हो जाए, या फिर क्या हो सकता है, कुछ लिक्विड का पार्ट बाय चांस यहाँ पे आ जाए. तो ये वेपर क्या होती है, ये अपर साइड से वेपर आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाती है, और यहाँ जो भी लिक्विड होता है वो नीचे की तरफ, पाइप फॉर रिसर्कुलेशन वी कैन से हियर, यहाँ से जो भी लिक्विड पार्ट होगा वो यहाँ पे आकर और आपके इस कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट वाले आउटलेट से हम उसको बाहर की तरफ कलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक वर्किंग फॉर दिस क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर. नाउ यूजेस क्या है इसके, यूज फॉर द थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस. तो एक्चुअली इसमें जो हमारा रिटेंशन टाइम होता है फीड का, फीड मटेरियल का, बहुत ही कम होता है. इसीलिए हम इनमें थर्मोलेबाइल मटेरियल, या हम कहें क्या, ऐसे मटेरियल्स जो कि हमारे हीट के साथ डिग्रेड होने के चांसेस होते हैं, उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. Second one is clear liquid forming and corrosive solution in large quantities can be operated. Clear liquids forming solutions क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने डिफ्लेक्टर प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहां पे हम फॉर्मिंग सॉल्यूशंस को यूज कर सकते हैं. क्लियर लिक्विड को हम बहुत इजीली इसमें यूज कर सकते हैं. एंड कोरोसिव सॉल्यूशन एक्चुअली क्या करते हैं कि ये कोरोजन क्रिएट करते हैं. कोरोजन इज व्हाट, कि मेटल का डिग्रेड हो जाना. अब कई कोरोसिव सॉल्यूशन ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको किसी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है उनको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं. तो इस टाइप के जो कोरोसिव सॉल्यूशंस होते हैं, दैट कैन बी इजीली यूज्ड इन दिस इवेपोरेटर. इस इवेपोरेटर में क्यों हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो रेसिडेंस टाइम है, ठीक है, वो जो उसमें होल्ड अप का टाइम है वो काफी कम होता है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं. Deposits of scale can be removed quicker either by increasing the feed rate or by decreasing the steam rate so that the product is unsaturated for a short time. अब यहाँ पे ये point थोड़ा सा focus करने वाला है. The deposit of scales can be removed quickly.
कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे ट्यूब्स हैं उनके अंदर जो फीड मटेरियल फ्लो कर रहा है उसमें कोई ना कोई सोल्यूट प्रेजेंट होगा दैट इज डिसॉल्व इन इट, ठीक है। तो उसमें वो जो सोल्यूट है वो कई बार इवेप जो हमारे ट्यूब्स हैं उनके इंटरनल लाइनिंग्स पर, इंटरनल सरफेस पर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट्स ऑफ स्केल कहते हैं। अब इस डिपॉजिट्स ऑफ स्केल्स को हटाने के लिए, स्केल्स इज नथिंग बट जो सोल्यूट है आपका, वो सोल्यूट ही क्या करता है, ट्यूब्स के इंटरनल सरफेसेस पे थोड़ा सा कह सकते हैं डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो हार्ड मटेरियल के फॉर्म में आने लगता है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट्स, डिपोजिशन ऑफ स्केल्स कहते हैं। इस स्केल्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, आइदर बाय इंक्रीजिंग द फीड रेट, या तो हम क्या करें, जो हम यहाँ से फीड रेट प्रोवाइड कर रहे थे, दिस वन वी कैन से हियर, जो हम फीड रेट प्रोवाइड कर रहे थे ये बहुत ही फास्ट स्पीड में हम इसको अंदर की तरफ इंट्रोड्यूस कराएं, जिससे क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी ऊपर जाने के बाद यहाँ से सेपरेट भी हो जाएगी, जिससे इसमें जो सोल्यूट है उस सोल्यूट को यहाँ पे डिपोजिशन का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीका हो गया कि हम इसमें जो डिपोजिशन ऑफ स्केलिंग वाला प्रॉब्लम है उसको हम हटा सकते हैं। दूसरी चीज क्या, और बाय डिक्रीजिंग द स्टीम रेट सो दैट प्रोडक्ट इज अनसेचुरेटेड फॉर अ शॉर्ट टाइम, या फिर हम क्या कर दें कि जो हम यहाँ से स्टीम प्रोवाइड कर रहे थे, इस स्टीम को प्रोवाइड कराने की रेट को हम थोड़ा सा स्लो कर दें। इससे होता क्या है कि अगर स्टीम बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोवाइड हो रही होगी, मीन्स हीट बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो गई होगी, हो रही होगी, तो यहाँ जो प्रोडक्ट है या फीड मटेरियल है वो कंसंट्रेट होने लगेगा। एक कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मीन्स एक लिमिट के बाद वो क्या होता है, सैचुरेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा। अगर वो सैचुरेशन में आ गया इट मीन्स वहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वहां क्या होगा, जो सॉल्यूट है हमारा एक हार्ड फॉर्म में या फिर बहुत सिंपल से फॉर्म में बोले, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। वो क्रिस्टल्स हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर इन वॉल्स पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो डिपोजिशन का प्रॉब्लम है, स्केलिंग का प्रॉब्लम है, हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम फीड मटेरियल का इंट्रोडक्शन की जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसको हम कम कर, उसको हम फास्ट कर दें, या फिर जो स्टीम के इंट्रोडक्शन की जो रेट है उसको हम स्लो कर दें, जिससे अल्टीमेटली होना क्या है, फीड मटेरियल की स्पीड ज्यादा होगी, वो जल्दी से इसको ट्रैवल करके पास हो जाएगा, कोई स्केलिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टीम थोड़ा सा लो रेट से हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो कंसंट्रेटेड नहीं हो पाएगा या सेचुरेशन के पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, अनसेचुरेटेड रहेगा, जिससे कि जो उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है वो यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे इसमें यूजेस के लिए। देन आता है हमारा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, लार्ज एरिया फॉर हीट ट्रांसफर, इसमें बहुत सारी ट्यूब्स लगी होती हैं जिससे कि जो हमारा एरिया है हीट ट्रांसफर का वो बढ़ जाता है। रेसिस्टेंस फॉर हीट ट्रांसफर एट बाउंड्री लेयर डिक्रीजेस, रेसिस्टेंस फॉर हीट ट्रांसफर एट बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर अब यहाँ पे क्या होती है ये हम समझना चाहें तो कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि घरों में जब हम बकेट्स में वाटर को फिल करते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व देयर कि जो बकेट की वॉल है और उससे लगा हुआ जो वाटर फिल है, उन दोनों के बीच में कभी आप देखें आपको एक बहुत ही फाइन एक ऐसा लाइन टाइप की दिखाई देगी, जिसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर बोलते हैं। और वो जो बाउंड्री लेयर है वो बहुत ही ज्यादा एक रिजिड फॉर्म में अवेलेबल होती है, जो कि आप इसको कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। और ये जो बाउंड्री लेयर है इससे हमेशा क्या होता है, जो हमारी हीट ट्रांसफर का वेलोसिटी है वो हमेशा लो होती है। मीन्स इस बाउंड्री लेयर से अगर हमको कुछ पास कराना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं डिफिकल्टी होती है। तो इसीलिए इस, लेकिन अगर हम उस फीड मटेरियल की जो इंट्रोडक्शन रेट थी बहुत ज्यादा उसको फास्ट कर दें तो उस केस में जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। अगर बाउंड्री लेयर की थिकनेस कम है तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर का जो रेसिस्टेंस है वो वहां पे क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जितनी ज्यादा ये बाउंड्री लेयर थिक होगी उतना ही ज्यादा ये रेसिस्टेंस जो है बढ़ता जाएगा। Now, the third point is time of contact between the liquor and the heating surface is very low. Liquor is saying there the feed material. तो यहाँ पे जो time of contact है, देखो liquid in heater for 1 second, टोटल रेसिडेंस 20 सेकेंड इन द एवेपोरेटर। तो जो अगर हम स्टीम मीन्स टोटल अगर हम बोले तो 21 सेकेंड के लिए जो है आपका फीड मटेरियल एवेपोरेटर में रहता है। अब 20 सेकेंड्स में तभी हम बोल रहे थे वहां पे कि थर्मोलेबाइल मटेरियल्स को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि 21 सेकेंड्स में ज्यादा टाइम नहीं जाता और आपके थर्मोलेबाइल मटेरियल भी यहाँ पे इजिली ऑपरेट हो सकते हैं। सो यूज फॉर द हीट सेंसिटिव मटेरियल, सुटेबल फॉर फोम फॉर्मिंग मटेरियल क्योंकि डिफ्लेक्टर हमारा प्रोवाइडेड है, लो होल्ड अप एंड स्मॉल फ्लोर स्पेस, ज्यादा कह सकते हैं स्पेस नहीं चाहिए उसको कैरी करने के लिए।
डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, एज वी कैन सी हियर कि आउटलेट वेंट के लिए दिया हुआ है, और आपका कंडेंसेट के लिए दिया हुआ है, स्टीम के लिए इनलेट दिया हुआ है, और समहाउ आपने एक साइड में अपना साइक्लोन सेपरेटर लगा रखा था, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट हमारा एक्सपेंसिव हो जाता है। नाउ डिफिकल्ट टू क्लीन एंड मेंटेन, थोड़ा सा मेंटेनेंस और क्लीनिंग इसकी टिपिकल है। नाउ लार्ज हेड स्पेस रिक्वायर्ड, जो हमारा ऊपर का वेपर हेड था वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा वाइड था, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे जो हमारा इवेपोरेटर है उसको रखने के लिए एक लार्ज हेड स्पेस की जरूरत है। लेकिन फ्लोर स्पेस उसका कम है, कि जो आपका फ्लोर वाला पार्ट है वो इतना ज्यादा वाइड नहीं होता है। नॉट यूज फॉर द विस्कस लिक्विड, सॉल्टिंग एंड स्केलिंग लिक्विड, तो हम इसको विस्कस लिक्विड्स के लिए, सॉल्टिंग मीन्स जो सॉल्टी मटेरियल्स होते हैं या सॉल्यूशंस हैं जिसमें से सॉल्ट जो है एक्सट्रैक्ट आउट होके डिपॉजिट हो सकता है, या फिर स्केलिंग, स्केलिंग मीन्स जिसमें सॉल्यूट हमारे आपके ट्यूब्स के इंटरनल सरफेसेस पे डिपॉजिट हो सकते हैं, तो इस टाइप के लिक्विड्स को हम इसमें यूज नहीं करेंगे। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर दैट व्हाई दिस इवेपोरेटर नेम्ड क्लाइंबिंग और राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से नाम इसको क्यों दिया गया है? तो इसमें जो आप, अगर हम बोले, जस्ट सेकेंड, दिस वन, सो अगर हम इस डायग्राम को देखते हुए समझे, अगर हम यहाँ से विस्कस लिक्विड को अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, पहली चीज तो क्लाइंबिंग फिल्म या राइजिंग फिल्म क्यों दिया गया है? क्योंकि जो फीड मटेरियल जाता है ये हमेशा क्या जाता है, क्लाइंबिंग या राइज होता है इस इवेपोरेटर में, इसीलिए इसका नाम है क्लाइंबिंग और राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर। अब हम यहाँ पे क्या करें, हम इसमें विस्कस लिक्विड को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सबको पता है विस्कस लिक्विड को फ्लो करने में टाइम लगता है, ठीक है, और यहाँ पे तो हम वैसे भी देख रहे हैं कि क्लाइंबिंग और राइज होके इस ट्यूब में मींस अगेंस्ट द ग्रेविटी फीड मटेरियल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इवेपोरेटर में। दैट्स व्हाई वी कैन से हियर दैट विस्कस मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड, और यही एक रीजन है कि हम इसमें कभी भी विस्कस मटेरियल्स को यूज नहीं करेंगे। और अगर स्केलिंग या जो हमारा सॉल्टी लिक्विड्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? अदरवाइज ये जो है हमारे लिक्विड, ये सॉल्टिंग और स्केलिंग लिक्विड, ये हमारे ट्यूब्स की इंटरनल सरफेसेस पे कोई ना कोई डिपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, जिनकी वजह से हीट ट्रांसफर में प्रॉब्लम होने लगेगी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, इफ फीड रेट इज हाई, लिक्विड कंसंट्रेट insufficiently low, film cannot be maintained due to which dry patches may form on the tube wall। अब इसमें क्या है, फीड रेट इज हाई, अगर जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे थे फीड मटेरियल को उसको बहुत ज्यादा हाई रेट से हम इंट्रोड्यूस कराने लगे, तो जो लिक्विड मीन्स एक सफिशिएंटली कंसंट्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि इवेपोरेशन का अल्टीमेट गोल क्या है कि हमको कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे जो लिक्विड है वो हमारा इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होगा इफ वी विल मेक द फीड रेट सफिशिएंटली हाई, ठीक है। तो उस जगह पे क्या होगा, फिल्म कैन नॉट बी मेंटेन्ड, जो हमारी फिल्म या फिर कह सकते हैं बाउंड्री लेयर मेंटेन हो रही थी, या फिर एक प्रॉपर तरीके से जो हमारा ओवरऑल समझ लीजिए कि जो लिक्विड है वो ठीक से गर्म नहीं हो पा रहा, ठीक है, कंसंट्रेटेड होने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर हमारे ड्राई पैचेस ट्यूब वॉल पर पड़ने लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सफिशिएंटली जो बाउंड्री लेयर थी उसका भी वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। क्वेश्चंस नाउ, द क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, कि अगर ये क्वेश्चन डिटेल में आता है देन यू हैव टू राइट एवरीथिंग अबाउट इट, लाइक प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, नाउ द सेकंड वन इज व्हाई विस्कस लिक्विड कैन नॉट बी यूज्ड इन द क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, क्यों नहीं यूज किया जा सकता? जस्ट वी हैव डिस्कस्ड इट, क्योंकि विस्कस इसमें क्या है, जो हमारा लिक्विड या फीड मटेरियल उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो विस्कस लिक्विड है, ये विस्कस लिक्विड हमको पता है ये इतना ज्यादा फ्लो नहीं कर पाते हैं, लिक्विड्स जिनमें जो बहुत ही ज्यादा विस्कस होता है, जिसकी वजह से हम इनको क्लाइंबिंग फिल्म एपरेटस में यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल अगेंस्ट द ग्रेविटी। नाउ डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंबिंग फिल्म एपरेटर। प्रिंसिपल सिंगल आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंट्रेनमेंट सेपरेटर इन क्लाइंबिंग फिल्म एपरेटर? मींस इन शॉर्ट क्वेश्चन द question can come that what is the purpose of entrainment separator, or we can say deflector. You have to remember both the names here. How climbing film evaporator is suitable for the thermolabile substance? So here you have to mention that जो hold up time या residence time है liquid का या feed material का in the climbing film evaporator, that is very less, that is total almost 21 seconds. So for that purpose, so we can use this thermolabile substances in the climbing film evaporator. Okay, so these are the questions, these are the topic, that is climbing or rising film evaporator. If you have any query regarding the topic, you can mention in the chat box. And moreover, if you want some topic that you find complicated in the pharmaceutical engineering, you can mention that topic also in the chat box, in the comment section, so that in my next lecture, I will try to
टेक दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स इन जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जिसमें सब बच्चों को आ रही होगी. ओके, so for this lecture, this all topic we are having. So thank you so much, and keep studying. All the best.